Hello students, good morning to all of you. We have completed the ray optics part, but inside the ray optics there is one more part called as optical instrument. So we'll start this topic today. Now mind it, this topic is very important because it comes for 5 marks. Under this topic you have to study 3 different things: simple microscope, compound microscope, astronomical telescope. इन तीनों में से कोई एक सिंपल माइक्रोस्कोप लीस्ट चांस ऑफ कमिंग. ओके, बेसिकली कंपाउंड माइक्रोस्कोप और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इन दोनों का कहानी पूछता है 5 मार्क्स में. ओके, इट कम्स इन अ 5 मार्क्स क्वेश्चन. So let's start with the first, that is simple microscope. Now what is a simple microscope? A simple microscope is nothing but a convex lens. A simple convex lens of small focal length. Okay, that is called as simple microscope. So basics, very basic things. When we used to buy a geometry box for mathematics, earlier, I don't know now it's there or not. Earlier when we were students, whenever we try to buy a geometry box, inside the geometry box there is a convex lens also there. Okay, so that is basically a convex lens is called as simple microscope, and that convex lens should have small focal length. But ये ध्यान रखना है, मतलब मोटा होना चाहिए वो लेंस, तब उसका अपने आप थिकर लेंस होना चाहिए ताकि फोकल लेंथ अपने आप कम हो. क्यों थिकर होना चाहिए? अगर थिकर होगा तो रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटा होगा तो फोकल लेंथ अपने आप कम होगा. ओके, बिकॉज फोकल लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर्स. दीस थिंग्स आई हैव टॉट यू अर्लियर आल्सो. अब हाउ इट इज यूज्ड एज सिंपल माइक्रोस्कोप. ओके, एंड व्हाट इज इज यूज? इसका यूज क्या है? सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज क्या है? सिंपल माइक्रोस्कोप जस्ट वी यूज दिस टू व्यू स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स. कोई चीज छोटा लिखा हुआ है तो उसको मैं सिंपल माइक्रोस्कोप से देख के लिख सकता हूं, पढ़ सकता हूं. ओके, नाउ हाउ वी यूज अ कन्वेक्स लेंस टू वर्क एज सिंपल माइक्रोस्कोप. व्हाट इज द थ्योरी? द थ्योरी इज दैट अ कन्वेक्स लेंस हैज अ यूनिक नेचर. द यूनिक नेचर इज दैट इट प्रोड्यूस अ वर्चुअल एंड enlarged image when the object is placed between optical center and focus. एक कन्वेक्स लेंस का जब ऑब्जेक्ट को मैं ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखता हूं, इट प्रोड्यूसेस अ वर्चुअल एंड इनलार्ज्ड इमेज. कन्वेक्स लेंस का ये एक स्पेशलिटी है कि वो वर्चुअल और इनलार्ज इमेज बनाता है. और कोई भी लेंस कन्वेक्स कनकेव लेंस वर्चुअल इमेज बनाता है बट वो इनलार्ज इमेज बनाता है. सो दिस इज द थ्योरी, दैट दिस इज अ प्रिंसिपल, वी कैन से प्रिंसिपल आल्सो, दैट इन केस ऑफ अ कन्वेक्स लेंस व्हेन वी प्लेस एन ऑब्जेक्ट बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड focus, it produces a virtual and enlarged image. Okay, this is the theory of principle. Now what is my job? My job is to learn the derivation of magnifying power, also called as angular magnification of simple microscope, in 2 cases. One is called as distinct vision, other is called as normal vision. Now you need to understand very nicely what is the distinct vision and what is a normal vision. Whenever I say distinct vision, that means the final image जो प्रोड्यूस होगा वो at D होगा. At D मतलब क्या? Least distance of distinct vision. Least distance of distinct vision. Its value is 25 सेंटीमीटर. जो फाइनल इमेज फॉर्म होगा वो लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी में फॉर्म होना चाहिए. Then that is called as distinct vision. But when I say a normal vision, that means जो फाइनल इमेज फॉर्म होगा वो इंफिनिटी में होना चाहिए. What is the difference between these two? In case of a normal vision, our eye ciliary muscles don't need to work, don't need to contract. Okay, focal length accommodation करने का जरूरत नहीं है because it is at infinity. यहाँ पे accommodation करने का जरूरत है. That's why it's called normal vision. Normal आपको उसमें देख सकता हूँ उस इमेज को. It is at infinity. So you need to understand only these 2 things. Normal vision मतलब क्या? फाइनल इमेज को इंफिनिटी में बनाना है. और डिस्टिंक्ट विजन मतलब क्या? फाइनल इमेज को मुझे एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन में डालना है. ठीक है, सो माय जॉब इज टू डिराइव मैग्नीफाइंग पावर. क्या डिराइव करना है क्लास? मैग्नीफाइंग पावर, आल्सो कॉल्ड एज एंगुलर मैग्निफिकेशन. नाउ अ स्टूडेंट गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन मैग्नीफाइंग पावर एंड लीनियर मैग्निफिकेशन. लीनियर मैग्निफिकेशन जो आपने पहले पढ़ा था, स्मॉल m, height of image by size of object. This is not similar. This is linear magnification, that is magnifying power, or angular magnification. They are 2 different things. Okay, so don't get confused between these 2.
Now, what is the definition of magnifying power or angular magnification? So, magnifying power का definition क्या होता है? I'm denoting it by capital N. It is angle beta by alpha. Now, what is beta angle? Beta is the angle made by final image at eye, or we can say at optical center, क्योंकि हम optical center से ही देखेंगे body को, image को. Okay. And alpha is the angle made by object at optical center or at eye when both object and image are placed at least distance of distinct vision. Okay, so this is the magnifying power definition for case 1. What is case 1? At distinct vision. So at distinct vision, what is magnifying power formula? It is beta by alpha. Okay. Understand? So what is beta and what is alpha? In figure also I will teach you again. Beta is angle made by image at eye, angle made by object at eye, but both image and object should be placed at least distance of distinct vision. Now, we need to concentrate on the ray diagram. Let's talk about the ray diagram. How to draw a ray diagram? First you draw a horizontal line, then you draw a vertical line. बना दिया. लेंस से बात कर रहा है. Okay. 3 सेंटीमीटर में यहाँ फोकस लोगे, 3 सेंटीमीटर यहाँ फोकस लोगे, 3 सेंटीमीटर यहाँ फोकस लोगे, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर 2f लोगे. f2f f2f. Now, convex lens कैसे simple microscope बनता है? What is the principle say? We need to place an object between optical center and focus. So optical center and focus between object लिख दो. So एक ray straight जाएगा parallel to principal axis passing through focus, और एक ray will pass through optical center. So they will expand in other way around. That means they will meet somewhere, appears to meet somewhere. Okay class? ये समझ में आया कि नहीं है? थोड़ा मैंने गलत बना दिया, मेरा मीट नहीं कर रहा है. So my will meet. तुम लोग स्केल लेके बनाना, अपने पास रहेगा. So this is the virtual image. Always it will be in dotted line. Okay. So this is the object A, B. So this is the virtual image A dash, B dash. Okay. And since we are doing distinct vision, that means the virtual image will be formed at D. Okay. And what is this? This is U, object distance. Okay. Now you can make a lens for a show off. Show off के लिए lens बना दो. बना दिया मैंने. This is an optical center. और इन dotted lines को now you can rub it. क्योंकि dotted lines मैंने dotted lines बनाया था just for my reference, nothing else. Okay. ये मेरा कहानी हो गया. Now, what is beta and alpha? Try to understand the beta and alpha. Beta is the angle made by image at eye. This is an eye. Here you have an eye like this. Okay. That is at optical center. Optical center में कितना angle बना रहा है? Angle made by image at optical center when the image is at a distance d. So यहाँ पे है d distance, तो ये image कितना angle बना रहा है? Beta angle बना रहा है. So this angle is beta. Clear? Similarly, what is alpha? So beta is what? Angle made by image at eye when image is at d. What is alpha? Angle made by object at eye, but the object should be also at D. ये object D पे नहीं है, तो इस object को, क्योंकि angle made by object at eye is also alpha. This is also alpha. इसका मतलब alpha beta से नहीं. Definition बोलता है angle made by object at eye when object is placed at D. मतलब object को, अभी ये diagram नहीं है, ये सिर्फ definition निकालने के मैंने बताया. तो मैंने object को यहाँ खींच के लेके आ गया. Let this is P. Then this object will make some angle at I, that is your alpha. I hope you understand. So that is beta by alpha. Now let me again define the magnifying power. Magnifying power of a simple microscope at distinct vision is nothing but it is ratio of angle made by image divided by angle made by object at I when both image and object are placed at D. Clear? Done? This is all about the definition. Now my job is to derive the expression. We understand what is the magnifying power. Magnifying power is beta by alpha.
बट वी नीड टू ड्राइव द मैग्नीफाइंग पावर इन टर्म्स ऑफ डी एफ यू, इनके फॉर्म में ड्राइव करते हैं, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे, देखो वेरी सिंपल स्टेप, सिंस बीटा एंड अल्फा आर स्मॉल, हम सारे डेरिवेशन में कैन से मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल्स टू tan beta by tan alpha. Since the angles are small, that means beta I can consider as tan beta and alpha we can consider as tan alpha, right? Now tan beta का वैल्यू निकालो. What is tan beta in this triangle? What is tan beta? Perpendicular by base, देखो ऐसे, हाँ, perpendicular क्या होगा, a dash b dash by base क्या होगा, o b dash divided by tan alpha, again perpendicular base, that is p b dash divided by OB dash in this triangle. See this triangle, इस triangle को देखो, tan alpha is perpendicular by base. तो यहां से क्या हुआ, देखो OB dash PB dash कट गया, तो what is magnifying power? A dash B dash by PB dash. क्या है, PB dash. Now PB dash को मैं AB बोल सकता हूं because they are same length. So AB. So can I say it is size of image by size of object? Size of image by size of object. तो जब मैंने मैग्नीफाइंग पावर डिराइव करना स्टार्ट किया तो मेरे को दिखाई दिया दैट इज नथिंग बट इट इज इक्वल्स टू लीनियर मैग्निफिकेशन फॉर अ सिंपल माइक्रोस्कोप. सो दैट्स आई टोल्ड यू अर्लियर, डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद लीनियर मैग्निफिकेशन विद मैग्नीफाइंग पावर. हियर इट इज कोइंसिडेंटली कमिंग मैग्नीफाइंग पावर इक्वल्स टू लीनियर मैग्निफिकेशन, ठीक है ना, यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ बीटा बाय अल्फा. नाउ लेट्स कैलकुलेट द लीनियर मैग्निफिकेशन. नाउ व्हाट इज लीनियर मैग्निफिकेशन? V by U. We know for a lens is V by U. Now substitute the V and B on. What is V? Minus D. This sign convention. What is U? Minus U. So what is magnifying power? D by U. Now, finally we got magnifying power is D by U. But D is a constant 25 centimeter. But U. अब तुम प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में सोचो. मैं दुकान में जाऊंगा, मैं बोलूंगा मुझे सिंपल माइक्रोस्कोप निकालना है, मुझे सिंपल माइक्रोस्कोप दीजिए, तो वो तुमसे पूछेगा कि कितना मैग्नीफाइंग पावर का दीजिए, कितना मैग्नीफाइंग पावर का दूं. तो अगर मैग्नीफाइंग पावर यू पे डिपेंड करेगा तो यू तो मैं चेंज कर सकता हूं ना बार बार. सो इट्स मैग्नीफाइंग पावर इज डिपेंडिंग ऑन सच अ फैक्टर विच इज वेरिएबल. सो व्हाट इज माय जॉब इज, माय जॉब इज टू कन्वर्ट दिस यू इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ. डू यू अंडरस्टैंड दिस क्राइटेरिया क्लास? मुझे मैग्नीफाइंग पावर को फोकल लेंथ के फॉर्म में चाहिए, मैं यू के फॉर्म में नहीं रख सकता. क्यों नहीं रख सकता? अगर मैं यू के फॉर्म में रखूंगा, यू इज अ वेरिएबल, यू अगर वेरिएबल है तो अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग लेंस यूज करूं, या अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए सेम लेंस अलग अलग मैग्नीफाइंग पावर आएगा? ऐसा तो नहीं हो सकता ना. मैग्नीफाइंग पावर तो एक ही लेंस का डिपेंड करता है. हाँ मुझे ये लेंस चाहिए, हाँ मुझे फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर का लेंस चाहिए जो इतना मैग्नीफाइंग पावर प्रोड्यूस करता है. सो आई वांट माय एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ. So that is why I will do further. My job is to now remove this u in terms of focal length. For that, what we will simply use lens formula. 1 by v minus 1 by f equals to 1 by v minus 1 by u equals to 1 by f. This is the lens formula. Here, mind it, we need to find 1 by u. तो यहाँ पे पहले कंडीशन डालो, minus d minus u, sign convention. V is in that direction, it is negative. Okay, incident is in this direction and V is in that direction. O B dash is V. That is minus D. U is always negative. Focal length of a convex lens is positive. तो यहां से कितना है? 1 by U equals to 1 by F plus 1 by D. आ गया. Therefore, magnified power equals to D into 1 by U. 1 by F plus 1 by D. So finally we got 1 plus D by F. So this is the magnifying power of a simple microscope at distinct vision. Okay, now we need to go for normal vision. We need to find the magnifying power at normal vision. Now listen very carefully. Yeah? Normal vision का derivation नहीं आता है, least possible chances. Normal vision का सिर्फ diagram आता है. Whether we talk about simple microscope, whether we talk about compound microscope, whether we talk about astronomical telescope, इसका basically तुम्हारे पास ray diagram आएगा. But we will side by side we will derive also the magnifying power also. Okay. Now what is normal vision? Normal vision का ray diagram कैसे पता चलेगा, क्या बनाना है? So see, first we draw a horizontal line, then we draw a vertical line. We draw F 3 centimeter, 2F 6 centimeter, 3 centimeter, 6 centimeter. Okay.
अब नेक्स्ट चीज क्या है, मुझे पता है नॉर्मल विजन में फाइनल इमेज इंफिनिटी में बनना चाहिए, राइट? इतना मुझे पता है, दैट इज द मीनिंग ऑफ नॉर्मल विजन। अब कन्वेक्स लेंस के बारे में सोचो, इमेज इंफिनिटी में कब बनता है? तो ऑब्जेक्ट फोकस पे होता है, हो गया, ऑब्जेक्ट को फोकस में रख दो, अब रे डायग्राम बना दो। सो वन रे पैरेलल पासिंग थ्रू फोकस and one ray passing through optical center. These two rays will become parallel. So this is object at infinity. This is normal vision. That's all. Okay, so you should know that normal vision क्या है? Normal vision is a vision in which the final image should be formed at infinity. इतना मुझे पता है। मुझे क्या ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है भैया? ऑब्जेक्ट को फोकस में रखना, हो गया। Now how to derive magnifying power? For derivation of magnifying power for normal vision, पहले तो मुझे पता होना चाहिए मैग्नीफाइंग पावर इज डी बाई यू। स्टार्ट यहीं से होगा बेटा, ओके? ये सब कुछ सेम रहेगा। मैग्निफिकेशन, मैग्नीफाइंग पावर विल बी इक्वल टू लीनियर मैग्निफिकेशन वी बाई यू। वी इज माइनस डी, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाई माइनस डी। यू इज माइनस यू, फ्रॉम द फिगर डी बाई यू। नाउ माय जॉब इज टू कैलकुलेट यू बाई 1 बाई यू वैल्यू फ्रॉम द लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला से 1 बाई यू का वैल्यू निकालो। कैसे निकालें? देखो, 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ। V is minus infinity, U is minus U equals to 1 by F. So 1 by F equals to 1 by U. So what is magnifying power? D by F. कैसा है? 1 by U के जगह 1 by F लेगा और U के जगह F लिख दो। अब तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए, लाइक सर ऐसा करना जरूरी थोड़ी है। We already know for normal vision U is equals to F because the final image is at infinity. That means I can write magnifying power is D by F. Yes, we can do this way also. But I am doing the way what I did in the PDF. Okay, तुम directly बोल सकते हो, since the final image at infinity, that means U will be equals to F. Okay, so the magnifying power for normal vision is D by F. I hope you understand, class. Okay, so you understand what is simple microscope? So simple microscope is nothing but a convex lens having small focal length. Why small focal length? After that we will discuss now. Okay, now we need to derive magnifying power. What is the magnifying power? Whenever we try to derive magnifying power, there are two types of visions. One is distinct vision और one is normal vision. तुम्हें एग्जाम में बोल दे देगा किस विजन में करना है। अगर नहीं बोला गया तो we'll go for distinct vision, क्योंकि नॉर्मल विजन का डेरिवेशन नहीं करते हैं, हम सिर्फ रे डायग्राम बनाते हैं। क्लियर? ओके, सो इट इज बीटा बाय अल्फा, हो गया। बीटा अल्फा का क्या स्पेसिफिकेशन है? बीटा इज एंगल मेड बाय इमेज, अल्फा इज एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट, बट बोथ इमेज एंड ऑब्जेक्ट शुड बी एट D, इसलिए मैंने इसको यहां खींचा। तो दिस इज नॉट अ रे डायग्राम, these two rays. Okay, then apply tan beta tan alpha, you will automatically get. Now, here one conclusion, don't make it as a conclusion. One thing you can see here, magnifying power is equals to linear magnification of a lens. This is equal only for simple microscope. Always equal नहीं होता है, ठीक है? Okay, now, अब मैं कौन सा simple microscope prefer करूंगा? I will prefer that simple microscope whose magnifying power is more. इसका मतलब whose focal length is less. D is a constant, 25 centimeter. इसलिए देखो magnifying power is inversely proportional to focal length. यहाँ भी कहाँ रह गया? यहाँ भी focal length नीचे है. Magnifying power is inversely proportional to focal length. यहाँ भी inversely proportional to focal length है. इसीलिए small focal length वाला यूज करते हैं हम. So why we have a convex lens of small focal length? So that we will have more magnifying power. That's why we prefer simple microscope is a convex lens of small focal length. I hope you understand, class. So that's all about simple microscope. Okay, now we'll go to the combined microscope, and that's gonna be very lengthy. Now see the next student. The next topic is compound microscope. We discussed simple microscope. Now what is the compound microscope? First you understand the need of compound microscope. We can use simple microscope to enlarge a small object. Okay, to see a small object in an enlarged version. Then why we need a compound microscope? Because simple microscope has a limitation. If you use in practical life एक माइक्रोस्कोप को एक सिंपल एक कन्वेक्स लेंस को लो, ओके, जो ज्योमेट्रिक बॉक्स में आता है, और छोटे छोटे वर्ड्स को इनलार्ज करने का कोशिश करो, वो धीरे धीरे इनलार्ज होते होते ब्लर्ड हो जाएगा। मतलब उसका इनलार्ज करने का, मैग्नीफाई करने का जो पावर है वो एक लिमिट तक है। उसके बाद अगर उसको फर्दर मैग्नीफाई करोगे तो जो इमेज होगा वो ब्लर्ड हो जाएगा, रिजोल्यूशन खराब हो जाएगा, मतलब क्लियर नहीं आएगा, डिस्टिंक्ट इमेज नहीं आएगा। That's why if I want a further magnification, we have to go for compound microscope.
Now what is the compound microscope? It consists of two lenses. टू कन्वेक्स लेंस होते हैं इसके अंदर, हाँ? दो कन्वेक्स लेंस होते हैं. एक का नाम होता है ऑब्जेक्टिव विच वी डिनोट बाय O, और एक का नाम होता है आईपीस विच वी डिनोट बाय E. अब ऑब्जेक्टिव कहां होगा? ऑब्जेक्ट के साइड होगा. आईपीस कहां होगा? आंखों के साइड होगा. एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप देखे हो ना आप, जो नीचे वाला होता है लेंस, जो ऑब्जेक्ट के नजदीक होता है, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव. जो ऊपर जो आंखों के नजदीक होता है, दैट इज कॉल्ड आईपीस. ठीक है, ओके. ऑब्जेक्टिव, इनमें से किसका फोकल लेंथ छोटा होगा, किसका फोकल लेंथ बड़ा होगा, इसका एक जनरल फंडा है, एक आइडिया है. ठीक है ना. कंपाउंड माइक्रोस्कोप को, जिस चीज को मैं देखता हूं, जिस ऑब्जेक्ट को देखता हूं, उसका साइज मेरे आंखों से छोटा होता है ना. तो ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ छोटा होगा, आईपीस का फोकल लेंथ बड़ा होगा. समझ में आ गया? ऑब्जेक्टिव का एपर्चर छोटा होगा, आईपीस का एपर्चर बड़ा होगा विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्टिव. लेकिन दोनों का एपर्चर छोटा लेना पड़ता है. मतलब दिस थिंग आई विल डिस्कस लेटर ऑन आफ्टर सम टाइम, व्हेन वी कंप्लीट एवरीथिंग. अभी के लिए तुम समझो, ऑब्जेक्टिव का एपर्चर मतलब जो विथ है, द लेंस का जो डायमीटर है, वो छोटा होना चाहिए, और आईपीस का बड़ा होना चाहिए विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव के रेस्पेक्ट में एपर्चर बड़ा होना चाहिए. किसका? आईपीस का. तो फोकल लेंथ कैसे याद रहेगा? समझ में आ गया? सो व्हेन इन द कंपाउंड माइक्रोस्कोप देयर आर टू लेंसेस, ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस. किसका फोकल लेंथ ज्यादा बड़ा होगा? तो तुम देखो, मैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप फॉर्म यूजिंग अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप वी ऑब्जर्व एन ऑब्जेक्ट व्हिच साइज इज मच स्मॉलर देन द आई. ओके, तो ऑब्जेक्ट का फोकल लेंथ बहुत छोटा होगा, आईपीस का फोकल लेंथ बड़ा होगा, क्योंकि आई बड़ा होता है ऑब्जेक्ट से. दिस इज जस्ट जनरल फंडा टू रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट. ओके, so these are two types of lens we have in a compound microscope. These lenses are arranged coaxially. That means what? Their axes are same. They are arranged coaxially. ये फोकल, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये आईपीस है. ऑब्जेक्ट यहां पे कहीं पे होगा. ठीक है ना. इसका फोकल लेंथ छोटा, इसका फोकल लेंथ बड़ा. Coaxially means what? Their axis remains the same, and the distance between them we can change. आगे पीछे कर सकते हैं यूजिंग रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट. सो व्हाटएवर आई एम डिस्कसिंग हियर, दैट इज अ कंस्ट्रक्शन. ओके, व्हाट इज अ रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट? इफ यू हैव यूज्ड एवर माइक्रोस्कोप, तुम उस गोल गोल घुमा के आगे पीछे करते हो ना लेंस को, ताकि इमेज क्लियर है. दैट इज कॉल्ड रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट. ओके, यूजिंग द रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट, वी कैन चेंज द लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप. व्हाट इज द लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप? द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस, दैट इज कॉल्ड लेंथ ऑफ ट्यूब. लेंथ ऑफ ट्यूब भी बोल सकते हैं, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप बोलते हैं. इसको मैं चेंज कर सकता हूं. ठीक है. दिस इज ऑल अबाउट द कंस्ट्रक्शन. व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेंस वी हैव इन अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप. व्हाट इज दिस फोकल लेंथ, व्हाट इज दिस एपर्चर. ओके, एपर्चर आईपीस का बड़ा होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव का छोटा होना चाहिए. दिस रीजन, क्या रीजन है, क्यों है, एनीथिंग विल डिस्कस लेटर ऑन. नाउ व्हाट इज दिस थ्योरी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग. वर्किंग प्रिंसिपल क्या है और थ्योरी क्या है? ये बड़ा ही बेसिक फंडा है. Working principle or theory is nothing but just simply the ray diagram. Just ray diagram is the theory. Okay, हम उस ray diagram को समझने का कोशिश करेंगे. So whatever is the ray diagram, that ray diagram is actually the theory or the working principle. Okay, so before going to the working principle, we need to understand the working principle are of two different types. Again, one for distinct vision, other for normal vision. Okay, एक distinct vision होगा, एक normal vision होगा. So we need to find magnifying power. Here also magnifying power और angular magnification निकालना है. Okay, दो केस का, एक होगा distinct vision और एक होगा normal vision. Distinct vision मतलब क्या? The final image should form at D. Normal vision मतलब क्या? The final image form at infinity. Okay, distinct vision का प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल है सिंपल सिंपली द रे डायग्राम. पहले मैं रफ रे डायग्राम बनाता हूं. ठीक है ना. दिस इज एन ऑब्जेक्टिव एंड दिस इज एन आईपीस. वी नो इन अ कन्वेक्स लेंस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड 2f, उस तरफ एक इनलार्ज इमेज फॉर्म होता है ना बेटा. ओके, बट दैट इनलार्ज इमेज इज रियल इमेज and is enlarged, inverted. Next, if this image is placed within the focal length of eyepiece, then
ये वाला पार्ट जो होगा वो सिंपल माइक्रोस्कोप वाला पार्ट हो जाएगा। इस लेंस के कारण, इस लेंस में ये जो इमेज बना, ऑब्जेक्टिव का जो इमेज बना, वो आईपीस का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और ये ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के अंदर है, तो इसका जो इमेज बनेगा वो फर्दर इनलार्ज होगा, राइट। सो दिखा रहे दिस इज सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है? सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या होता था? ऑब्जेक्ट तुम्हारा फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होता था, और जो इमेज होता था वो वर्चुअल एंड इनलार्ज होता था। तो यही पार्ट है द आईपीस वाला पार्ट। ओके, द ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट में क्या होता है? व्हेन आई प्लेस एन ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड f and 2f of an objective, we get a real inverted and enlarged image. Now I want the further magnification, और बड़ा करना है. Then what I will do, using the rack and pinion arrangement, I will try to put this image within the focal length of objective. Then what will happen? It will produce a virtual image. यहाँ पे कहते हैं virtual image बनेगा, further enlarged. तो this is the principle. अब इस फिगर को कैसे बनाएंगे थोड़ी देर बाद बैठ रुक जाओ. Okay, so you understand the principle, and this final image will be formed at least distance of distinct vision. Okay, understand? तो since मुझे distinct vision में बनाना है, इसलिए मैंने जो इमेज बना था ऑब्जेक्टिव का उसको विद इन द फोकल लेंथ रखा। अगर मुझे इसको नॉर्मल विजन बनाना है तो जो फाइनल इमेज होगा वो इंफिनिटी में बनना चाहिए। दैट मीन्स ये जो इमेज बनेगा, ओके, इसको फोकस पे रखना पड़ेगा, किसका? आईपीस का, ताकि जो फाइनल इमेज हो वो इंफिनिटी में बने। डू यू अंडरस्टैंड? ये वाला क्राइटेरिया समझ में आया कि नहीं आया बताओ, क्योंकि ये क्राइटेरिया इज नथिंग बट सिमिलर टू द सिंपल माइक्रोस्कोप। ओके, नॉर्मल विजन में जो इमेज होगा ऑब्जेक्टिव का उसको विद इन द फोकल लेंथ ऑफ आईपीस रखना है डिस्टिंक्ट विजन में, ताकि इमेज डिस्टिंक्ट विजन में फॉर्म हो। और नॉर्मल विजन में जो इमेज बनेगा ऑफ द ऑब्जेक्टिव उसको फोकस पे रखना है ऑफ द आईपीस, सो दैट द फाइनल इमेज व्हिच विल फॉर्म विल बी एट इंफिनिटी। दिस इज द फाइनल theory. Okay, now let's start drawing the ray diagram. Now listen very carefully. When I draw the ray diagram, please take a rough notebook and note down those points which I am saying here. Otherwise, this ray diagram will be a big problem for you in your boards, because making a ray diagram is a big issue here. Okay, ray diagram बनता नहीं है बच्चों से, तो कुछ कुछ पैटर्न्स, कुछ कुछ ट्रिक्स हम यूज करेंगे रे डायग्राम बनाने के लिए। ओके, पहले क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे। नोट डाउन दीस थिंग्स इन ऑफ नोटबुक, ओके, और इन अ पीस ऑफ पेपर व्हिच यू कैन स्टिक इन योर पीडीएफ नोट्स। ओके, नोट्स जो मिला है नोट्स में स्टिक कर लो। फर्स्ट जॉब इज ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, नेक्स्ट जॉब इज ड्रॉ अ वर्टिकल लाइन, और ये छोटा वर्टिकल लाइन बनाना है। क्यों बनाना है छोटा? बिकॉज ये क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ छोटा होता है इन केस ऑफ माइक्रोस्कोप। क्यों? मैं जो ऑब्जेक्ट देखता हूं बहुत छोटा होता है उसमें। ओके, अब तुम क्या करो, इसका फोकस दिखा दो। मान लो मैंने दिखाया 3 सेंटीमीटर एफ, 3 सेंटीमीटर 2f, 3 सेंटीमीटर एफ, 3 सेंटीमीटर 2f। नाम मत देना, ठीक है ना। अब थ्योरी क्या बोलता है? इफ आई प्लेस एन ऑब्जेक्ट बिटवीन f एंड 2f, ओके, इट विल प्रोड्यूस विच टाइप ऑफ इमेज? यहां से भेजो और इसको यहां से भेजो। ओके, तब तक लग ज्वाइन, इट विल, यू विल नॉट एक्सटेंड दिस रे। ओके, यू विल एक्सटेंड दिस रे टिल दे ज्वाइन ईच अदर, और आगे मत बनाना। डू यू अंडरस्टैंड? और आगे नहीं बनाना है। क्लियर? ओके, नाउ व्हाट्स द नेक्स्ट जॉब? ये नेक्स्ट जॉब विल बी, इनको हटा दो, अब ये 2f नहीं पता, अब तुम इसको नाम दे दो FO, 2FO, focus of objective. This is an objective and this is what? FO. Okay, done. Now अब तुम इसके बाद बनाओगे आईपीस। पहले आईपीस नहीं बनाना है, इसके बाद आईपीस बनाना है, ठीक है ना। अब इसके बाद जब आईपीस बनाओगे, ये रे स्केल से सीधा आईपीस तक जाना चाहिए, उसके रेस्पेक्ट में तुम आईपीस बनाओगे। हाँ, एज वेल एज दिस इमेज विच इज फॉर्मिंग, दिस इज द इमेज विच इज फॉर्मिंग, दिस इमेज शुड फॉल विद इन द फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस फॉर अ डिस्टिंक्ट विजन, such that the focal length should be more than this, क्योंकि इसका फोकल लेंथ बड़ा होना चाहिए इससे। समझ में आ रहा है? तो ये जो भी लेंथ है ना उससे बड़ा बनाओगे, मतलब ये डिस्टेंस दूर होना चाहिए, तो तुम यहां पे कहीं पे बनाओ। ये हो गया तुम्हारा आईपीस। ओके, कितना नीचे बनाओगे डिपेंड करता है ये रे कब जाके मीट करेगा। तो अब तुम स्केल लेके इसको मीट करा दो।
कट गया मीट, डन, दिस इज द नेक्स्ट स्टेप। ओके, नाउ विथ रेस्पेक्ट टू ये और ये सेम होना चाहिए, तो इसको थोड़ा और खींच दे, हो गया। सो दिस इज द इमेज। अब ये जो इमेज बना ये इसके फोकल लेंथ के अंदर आना चाहिए, तो यहां पे कहीं पे FE दिखा दो, ओके, सच दैट द फोकल लेंथ शुड बी ग्रेटर देन FO, डन। हाँ, अगर तुमने यही चीज बहुत नजदीक बना दिया और फोकल लेंथ यहां दिखा दिया और ये फोकल लेंथ से छोटा है तो गलत हो जाएगा, ये फोकल लेंथ बड़ा होना चाहिए, हो गया। सो फर्स्ट अगेन आई एम रिपीटिंग, ऑब्जेक्ट को F और 2F में रखो, horizontal line, then vertical dotted line, 3 centimeter F, 3 centimeter F, एक ऑब्जेक्ट रखा, ड्रा कर ले पैरेलल passing through focus, make करे passing through optical center, done. You will extend the ray till they meet, then after that you will not extend, okay, then you make the object. Now you have to place the eyepiece in such a way that the focal length should look greater than this, okay, then you extend till the lens. Now you have to draw a baseline, that is very important ना? एक बेस लाइन क्या करोगे, इस पॉइंट को ऑप्टिकल सेंटर ऑफ आईपीस को और इस पॉइंट को डॉटेड लाइन से एक्सटेंड करो, डॉटेड लाइन से, ठीक है ना क्लास, डॉटेड लाइन से एक्सटेंड करो। कब तक करोगे, इन दोनों के बीच तक। इसको इतना मत कर देना कि इसको एक्सटेंड कर दे, क्योंकि पूरा रे डायग्राम, पूरा डेरिवेशन चेंज हो जाएगा, क्लियर। तो इसी के अंदर रखना है, मान लो इधर आया है, इधर तक एक्सटेंड करो, हो गया ना। इस पॉइंट और इस पॉइंट को डॉटेड लाइन से एक्सटेंड करो और यहां से वही स्केल पकड़ के यहां ऐसे खींच दो, डार्क लाइन, ओके। अगेन इस पॉइंट और इस पॉइंट को एक्सटेंड करो, डॉटेड लाइन से जोड़ दो, इसी को फिर डार्क लाइन, तो यहां से एक्सटेंड होते हुए दिखेगा, एक्सपांड होते हुए यहां से मीट करेगा। सो दिस इज द फाइनल इमेज, ओके। सो दिस इज AB, देन व्हाट इज दिस, A dash, B dash, then what is this, A double dash and B double dash, okay। अब तुम लेंस दिखा दो, जस्ट फॉर द शो ऑफ। ये हो गया मेरा ऑब्जेक्टिव। नाउ यू कैन रब दिस थिंग्स, ऑब्जेक्टिव, और इस आईपीस को थोड़ा ध्यान से बनाओगे, जितना नीचे है उतना ऊपर बनेगा। पोलियो वाला लेंस मत बनाना प्लस, डोंट मेक अ लेंस ऑफ पोलियो। देखो मेरा पोलियो बन गया, ओके। दिस इज द फाइनल रे डायग्राम। Now, let's label it. I hope you understand how to draw the ray diagram class. Let's label it. What is this? This is UO, object distance of objective. This is UVO, image distance of objective. For objective, this is image, right? But for eyepiece, this is object. So can I say this is UE? And can I say this is VE? Okay, the image distance, this is the image for eyepiece, this is the object for eyepiece. If this is the object for eyepiece, then can I say this is object distance for eyepiece, UE, and this is the image for eyepiece, VE, image distance for eyepiece. Clear class? Any doubt? No. Okay, now comes to the magnified power definition. अब हम बात करते हैं मैग्नीफाइंग पावर का डेफिनेशन। तो मैग्नीफाइंग पावर अब क्या बोलता है, तो डेफिनेशन सेम है जो सिंपल माइक्रोस्कोप का था ना, वही है डेफिनेशन। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप एट डिस्टिंक्ट विजन इज नथिंग बट इट इज बीटा बाय अल्फा, दैट इज एंगल मेड बाय फाइनल इमेज। देयर आर टू इमेजेस, वन इज दिस एंड दिस इज फाइनल इमेज एट आई, ओके। आई कहां पे, यहां पे कहीं पे होगा आई। सो वी से ऑप्टिकल सेंटर, क्या बोलते हैं हम उसको, ऑप्टिकल सेंटर लेंगे। तो देयर आर टू ऑप्टिकल सेंटर्स, एक को हम O1 नाम दे दो, एक को तुम O2 नाम दे दो, ठीक है, ओके। सो बीटा बाय अल्फा, सो द एंगल मेड बाय इमेज, द फाइनल इमेज एट ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द आईपीस टू द एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट, okay, at eyepiece, but both object, but that is very important, both object and image should be at least distance of distinct vision। जो इमेज और ऑब्जेक्ट होगा, एंगल तब चेक करना है जब ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों डी पे है। तो इमेज यहाँ पे तो डी पे है फाइनल इमेज, तो ये कितना एंगल बना रहा है, ये रहा बीटा। क्लियर, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, ये ऑब्जेक्ट, क्या ऑब्जेक्ट डी पे है, नहीं है, तो अब ये जो है ये रे डायग्राम नहीं है,
ये सिर्फ डेरिवेशन डेफिनेशन को सेटिस्फाई करने के लिए है, ठीक है। तो अब ये मेरा ऑब्जेक्ट आ गया, पी ले लो उसको। अब मेरा ऑब्जेक्ट डी पे आ गया, देखो डी पे आ गया। अब ये जो इमेज एंगल बनाएगा एट आई पीस, दैट इज योर अल्फा। क्लियर क्लास? ओके, तो ये वाला फिगर क्यों बना, समझ में आ गया? सो दैट इज बीटा बाय अल्फा। Now we know what is beta. Beta and alpha are small angles. That means can I say it is tan beta by tan alpha? Yes, we can say it is tan beta by tan alpha. Now, in this triangle, what is tan beta? A double dash B double dash by O2 B double dash. Perpendicular by base O2 B double dash. Okay, इस triangle में देख रहे हैं. I hope you understand what I'm trying to say in class. वापस दिखा रहा हूं मैं. यहां से this is what B double dash ये रहा. ओके, अब इस ट्रायंगल में देखो tan alpha is perpendicular by base, so I can say like this PB double dash by O2B double dash. O2B double dash, O2B double dash will go, you will have A double dash B double dash by PB double dash. PB double dash is nothing but AB. AB हो गया। अब one thing you have to remember, यहां पे कुछ स्पेशल करना है। what is that? A dash B dash into और डिवाइड मार दो, A dash B dash by A dash B dash, ठीक है ना? Because this image was not there in the magnification formula. Okay, so I'm bringing it now. Now, why I'm bringing it? The reason is, see here, for the objective, A dash B dash is the image, and AB is the object. A dash B dash is the image, AB is the object for the objective. For the eyepiece, A double dash B double dash is the image and A dash B dash is the object. तो मैं इसको रीअरेंज किया, this by this लिखा। क्यों लिखा ये भाई, ये क्यों लिखा? क्योंकि मैं ऑब्जेक्टिव का इमेज और ऑब्जेक्ट अलग कर रहा हूं, आईपीस का इमेज और ऑब्जेक्ट अलग कर रहा हूं। तो अब देखो तो ये क्या है, साइज ऑफ इमेज बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। कैन आई से दिस लीनियर मैग्निफिकेशन? ओके, ये किसका इमेज है? ऑब्जेक्टिव का इमेज, ऑब्जेक्टिव का ऑब्जेक्ट। कैन आई से इट इज लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, एमओ, जो कि सिंपल माइक्रोस्कोप में सिर्फ एम आया था बिकॉज इट वाज ओनली वन लेंस, इनटू देखो साइज ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ इमेज बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, हुज इमेज एंड हुज ऑब्जेक्ट? आईपीस का। तो कैन आई से इट इज लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस। ओके, बस ये हुआ मैग्निफिकेशन, मैग्नीफाइंग पावर को डिराइव करने का एक्सप्रेशन। Now what's my job is? Now my job is to use lens formula to convert this MOME in terms of VU and F. बस ओके, यहां तक था नया, अब बाकी सब पुराना होगा। Now what is MO? What is MO? MO is VO by UO. ओके, ऑब्जेक्टिव V by U होता है M का वैल्यू। तो ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ऑब्जेक्टिव का इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्टिव का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो व्हाट इज VO? देखते हैं VO क्या है। VO इधर है, प्लस है, इट इज प्लस, तो प्लस VO डिवाइडेड बाय UO, बिकॉज दिस इज द इंसिडेंट रे। VO यहां से यहां जाएगा ना, ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे, तो VO इज पॉजिटिव बट UO इज नेगेटिव, माइनस UO, तो इट इज माइनस VO बाय UO इज MO। बस ये आ गया MO। नाउ वी गो फॉर ME। ओके, सो लेट्स गो फॉर ME। तो व्हाट इज ME? VE बाय UE। चलो यहां VE इज व्हाट, इस तरफ जा रहा है, इंसिडेंट रे इस तरफ है, और V आई एम मेजरिंग दिस, वी ऑलवेज मेजर डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, तो मैं यहां से यहां मेजर कर रहा हूं ना, तो इट इज माइनस D, इमेज डिस्टेंस इज माइनस D पे फॉर्म करेगा बिकॉज वी डीलिंग विद डिस्टेंट रीजन। UE is also in this direction, so minus UE. So what is ME? D by UE. Okay. Now what is magnifying power? Minus VO by UO, D by UE. Okay, you understand class? Now see, in this formula, can we ever calculate UE? No. तुम्हें पता, इन रियल लाइफ तुम्हें पता होगा कि ऑब्जेक्ट, तुम्हारा जो माइक्रोस्कोप है उसका जो नीचे वाला लेंस है उसको ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, वहां से तुम्हारा स्लाइड कितना दूरी में है, दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दैट यू कैन कैलकुलेट। ओके, तुम्हें फोकल लेंथ पता होगा माइक्रोस्कोप का, तो तुम VO कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, बट क्या कभी भी तुम ये वाला आइडिया निकाल सकते हो लेंस के अंदर घुस के? क्या तुम देख सकते हो ये कहां फॉर्म हुआ है?
So we cannot keep my answer in this form. UV के फॉर्म में नहीं लिख सकता. You need to understand कि out of this which factor we need to remove. UV which is inside the lens, this distance we cannot calculate ever. Okay, so now my job is to remove this UV using lens formula. So by lens formula in eyepiece, eyepiece के साथ काम करेंगे. 1 by V minus 1 by UV equals to 1 by FE. यहाँ पे डालो minus 1 by D, V is D minus D. माइनस ऑफ माइनस 1 by इक्वल्स टू 1 by f. ये एग्जैक्टली मैं वही कर रहा हूं जो मैंने सिंपल माइक्रोस्कोप में किया था पहले. जो सिंपल माइक्रोस्कोप में वही कर रहा हूं एग्जैक्टली से 1 by u का वैल्यू निकाल रहा हूं. तो यहां से 1 by u कितना है 1 by fe प्लस 1 by d. ओके, मुझे क्या चाहिए d by u चाहिए, तो इंटू कर दो d इंटू कर दो d by fe प्लस 1. सो फाइनली बिकॉज द मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल्स टू माइनस vo by u 1 प्लस d by fe. ओके, clear? Now this is the final formula. Now this minus sign indicates that the final image is inverted, और इस minus sign का कोई other criteria नहीं है. And when we use in numericals, only optical instrument magnifying power formulas, we don't use any sign convention. Rest in the whole optics everywhere use sign convention. सिर्फ मैग्नीफाइंग पावर फॉर्मूला का जब हम किसी न्यूमेरिकल में यूज करते हैं, ये फॉर्मूला डायरेक्टली मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला यूज करेंगे, तब हम यहाँ पे साइन कन्वेंशन नहीं डालेंगे. ठीक है ना, वी विल नॉट यूज एनी साइन कन्वेंशन. एंड वी डोंट यूज दिस माइनस आल्सो बिकॉज दिस माइनस हैज ओनली वन रोल, टू शो दैट द इमेज इज नेगेटिव, सॉरी द इमेज इज इन्वर्टेड. आई होप यू अंडरस्टैंड. ओके, नाउ फॉर प्रैक्टिकल पर्पस, normally this object is placed very close to the focal length or focus of the objective for practical purpose. बहुत नजदीक होता है, बहुत ही नजदीक होता है ताकि इमेज थोड़ा अच्छे से दिखे. So for practical purposes जो UO होगा वो similar to FO होगा, that is focal length. You understand what I'm trying to say you? जो ऑब्जेक्ट होता है वो बहुत ही क्लोज रखते हैं फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव से. दैट मीन्स द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होगा वो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव के बराबर होगा. ऐसे केसेस में व्हाट हैपेंस ना, द इमेज विच फॉर्म ना इज वेरी क्लोज टू द आईपीस, एकदम आईपीस के नजदीक बनेगा. ओके, सो व्हाट इज दिस? दिस इज लेंथ ऑफ द ट्यूब. सो व्हाट हैपेंस, जब ये ऑब्जेक्ट वेरी क्लोज टू फोकल लेंथ बन रखूंगा, एट फोकल लेंथ वेरी क्लोज टू सिमिलर टू फोकल लेंथ रखूंगा, तब जो इमेज बनेगा, ऑब्जेक्टिव का इमेज बनेगा, it has been as it's very close to eyepiece. So can I say VO is nothing but L? So in those cases I can say VO equals to length of tube. Then we have a final formula of linear magnification is what? Minus L by F naught 1 plus D by Fe. Now in your notes it is not minus because I told you we never use magnification formula with a negative sign. The negative sign has only one significance, that the final image is inverted in nature. हमें सिर्फ ये याद करना है. ओके, मैग्निफिकेशन इज L by F naught 1 plus D by Fe. बस और कुछ याद नहीं करना है क्लास. आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. ओके, ये समझ में आ गया अच्छे से? क्रिस्टल क्लियर? So this is all about the magnification formula, and this derivations are basically coming for 5 marks. Now, whatever we did here, we did for distinct vision. Now we'll go for normal vision. यही फॉर्मूला अब मैं नॉर्मल विजन के लिए डिराइव करूंगा. तो नॉर्मल विजन के लिए फिगर भी चेंज होने वाला है. यस क्लास, यस, फिगर चेंज होगा. तो फिगर में क्या चेंजेस आएगा, तो मैं वापस बना रहा हूं. फिगर में यहां तक कोई चेंजेस नहीं आएगा, इसके बाद से चेंज आएगा. ठीक है ना? सो प्लीज रिपीट द वीडियो एंड बेस लाइन खींचेंगे, कहां तक खींचेंगे, फिर ऐड करेंगे. तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं फिगर को रब कर रहा हूं कुछ पार्ट जो उसकी चेंजेस आएंगे. अगेन एग्जाम में बोर्ड में बेसिकली फिगर पूछता है, नॉर्मल विजन का फिगर बोलो. ओके, मैग्नीफाइंग पावर डिराइव करके दिखाओ, ये नहीं पूछता है. Now see, what is the difference in the figure? Now we have to make the final image at infinity. That is called normal vision. Hope you understand. तो डिस्टिंक्ट विजन में मुझे फाइनल इमेज को इंफिनिटी में नहीं बनाना था. ठीक है, मुझे फाइनल इमेज को इंफिनिटी में नहीं बनाना था. इसलिए मैंने क्या किया था,
The image formed by the objective I place within the focal length of eyepiece, so that the final image is inverted and virtual and enlarged also. But now for the normal vision, जो फाइनल इमेज बनेगा वो इस ऑब्जेक्ट का बनेगा ना. दिस इज एक्टिंग लाइक ऑब्जेक्ट, राइट? प्लस यही ऑब्जेक्ट है ना. ये जो फाइनल इसका जो इमेज बनेगा वो इंफिनिटी में बनना चाहिए. मतलब ये फोकस में रहेगा. किसका फोकस? आईपीस के फोकस में रहेगा. अब ये डिस्टेंस इतना है, इससे दूर में रखो. एफओ ये रहा, एफओ इतना, एफई तो बड़ा होना चाहिए ना, मतलब यहां पे रखोगे आईपीस को, to show that FE is more than FO. ठीक है. नेक्स्ट एवरीथिंग इज द सेम. इसको स्ट्रेच करो, वहां तक लेके जाओ. इसको स्ट्रेच करो, वहां तक लेके जाओ. नाउ अगेन ड्रॉ द बेस लाइन. इस पॉइंट को और इस पॉइंट को जोड़ दो. सो रेनबो, विच टू पॉइंट्स लीड टू. नाउ मुझे फाइनल इमेज कहां बनाना है बेटा? इंफिनिटी बनाना है. अब इससे पैरेलल यहां से एक लाइन खींचो, डॉटेड लाइन. पैरेलल, पहले हम जोड़ रहे थे ना इसको, अब पैरेलल बनाएंगे. इसी को इधर खींच दो, फिर इससे पैरेलल यहां पे एक डॉटेड लाइन बनाओ, इसी को इधर खींच दो. हो गया. द फाइनल इमेज एट इंफिनिटी बन गया. दिस इज द नॉर्मल विजन. और शो ऑफ के लिए यहां पे एक लेंस दिखा दो. दिस इज योर ऑब्जेक्ट, सॉरी, दिस इज योर आईपीस, दिस इज योर ऑब्जेक्टिव. आई होप यू अंडरस्टैंड क्लास. सो दिस विल बी रिमेन एज व्यू, but now this will be only UO also. UO, that is nothing but equals to FO, sorry, not UO, UE, object of eyepiece, and that is nothing but FE. ये समझ में आया कि उस ऑब्जेक्ट को फोकस पे क्यों रखना है? आईपीस के फोकस पे तभी रखना है, तब आईपीस के फोकस पे रखोगे तभी तो इमेज इंफिनिटी में फॉर्म होगा ना बेटा. और मुझे फाइनल इमेज को इंफिनिटी में फॉर्म कराना है बिकॉज ये नॉर्मल विजन है. यू अंडरस्टैंड क्लास? यू हैव टू प्रैक्टिस दिस रे डायग्राम्स बिकॉज वंस डायरेक्टली नहीं आएगा. कॉप में ट्राई करो बेटा, प्रैक्टिस करो. देख देख के वीडियोस को बार बार एक एक स्टेप्स देख के. हो गया क्लियर? नाउ हाउ टू डिराइव द मैग्नीफाइंग पावर फॉर्मूला. दिस इज ऑल अबाउट द रे डायग्राम. आई होप यू अंडरस्टैंड द रे डायग्राम क्लास. आई होप यू अंडरस्टैंड द रे डायग्राम. ओके ओके. नाउ हाउ टू डिराइव द फॉर्मूला. फॉर्मूला में कुछ नहीं करना है बेटा, सब कुछ सेम रहेगा, बस यहां पे चेंजेस आएंगे. दिस विल रिमेन लाइक दिस, माइनस vo by u, d by u, एवरीथिंग विल रिमेन सेम. एवरीथिंग विल रिमेन सेम. ओनली अब हाउ टू फाइंड 1 by u. यहां पे चेंजेस आएगा. 1 by u कैसे निकालेंगे? 1 by u कैसे निकालेंगे? v इंफिनिटी में फॉर्म हो रहा है. इमेज ऑफ आईपीस, आईपीस का जो फाइनल इमेज वो इंफिनिटी में फॉर्म हो रहा है. माइनस और माइनस 1 u. So what is what? 1 by u equals to 1 by fe. तो u equals to fe आ रहा है, तो कितना आ गया? माइनस vo by u into d by fe. ओके, इसमें अगर ये प्रैक्टिकल कंडीशन लगाओ, when the object is close to the focus of the objective, that means the object distance of the objective, ऑब्जेक्टिव का जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो इक्वल्स टू फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव हो जाएगा. देन दिस इमेज कम्स वेरी क्लोज टू द आईपीस, दैट इज इक्वल्स टू एल, दैट इज एल बाय एफ नॉट इनटू डी बाय एफ ई. दिस इज द मैग्नीफाइंग पावर फॉर वीयू की जगह एल, यू की जगह एफ ओ, डी बाय एफ ई. दिस इज द मैग्नीफाइंग पावर फॉर व्हाट? फॉर अ माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप इन अ नॉर्मल विजन. ओके, सो फाइनली क्या क्या चीज हमको दिखाई दिया. पूरा डेरिवेशन से सब खत्म हो गया बेटा. नाउ विल कम टू द न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट एंड कंसेप्चुअल प्रॉब्लम. ओके, न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट पे जाएंगे. सो वी गॉट मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला दो. एक एल बाई एफ ओ 1 प्लस डी बाई एफ ई, दिस इज फॉर डिस्टिंक्ट विजन. और एक एल बाई एफ ओ इंटू डी बाई एफ ई, दिस इज फॉर नॉर्मल विजन. ओके, ये हो गया डिस्टिंक्ट विजन, ये हो गया नॉर्मल विजन. अब यहां से क्या पता चल रहा है? ना द मैग्नीफाइंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ ओ एफ ई. इनवर्सली प्रोपोर्शनल. इसका मतलब मैग्नीफाइंग पावर अगर बढ़ाना है तो एफ ओ एंड एफ ई दोनों का वैल्यू छोटा होना चाहिए, नहीं? तो वी नीड टू टेक दोज लेंसेज हुज फोकल लेंथ आर स्मॉलेस्ट. ओके, उन दोनों स्मॉलेस्ट में से एक बड़ा होगा. फॉर एग्जांपल एक 283 है,
तो दोनों छोटा तो है, लेकिन एक बड़ा है 3 वाला बड़ा है, 2 वाला छोटा है, तो जो बड़ा है वो आईपीस रखेगा, जो छोटा है जो ऑब्जेक्टिव होगा. ओके, व्हाट इज दिस? ओके, नाउ नेक्स्ट इज एपर्चर कॉन्सेप्ट. एपर्चर ऑफ बोथ आईपीस एंड ऑब्जेक्टिव शुड बी स्मॉल. दोनों का एपर्चर का वैल्यू छोटा होना चाहिए, लेकिन उन दोनों में से छोटा तो होना चाहिए, फाइन, मतलब छोटा होगा, लेकिन उन दोनों में से कोई एक तो बड़ा होगा ना. बड़ा वाला आईपीस बनेगा, छोटा वाला ऑब्जेक्टिव बनेगा. जो मैं शुरू में बोल रहा था, ऑब्जेक्टिव का एपर्चर छोटा होना चाहिए, आईपीस का एपर्चर बड़ा होना चाहिए, लेकिन दोनों का एपर्चर ओवरऑल छोटा होना चाहिए. ओके, नाउ व्हाट इज दिस? This is a conceptual problem, that is choice of lens to construct compound microscope. ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है. What will happen? तुम्हारे पास बहुत सारा लेंस दिया रहेगा. मान लो 4 lenses are given to you. 4 lenses are given to you. 4 lenses focal length value given to you और power value is given to you. एक ही बात है. फोकल लेंथ दिया है तो पावर पता चल जाएगा, पावर दिया तो फोकल लेंथ निकल जाएगा. फॉर एग्जाम्पल फोकल लेंथ वैल्यू दिया है, इसका है 2 सेंटीमीटर, इसका है 3 सेंटीमीटर, इसका है 4 सेंटीमीटर, इसका है 5 सेंटीमीटर. ठीक है ना. और एपर्चर वैल्यू दिया हुआ है, इसका है 1 सेंटीमीटर, इसका 2 सेंटीमीटर, इसका 10 सेंटीमीटर, इसका 5 सेंटीमीटर. ओके, दे से choose 2 lenses. Okay, choose the lens which are suitable to make a compound microscope. अब तुम जब एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाओगे तो तुम्हारा मेन एम क्या होना चाहिए? मैं ऐसा कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाऊंगा जिसका मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा होना चाहिए. ओके, मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा होने के लिए दोनों फोकल लेंथ छोटा होना चाहिए. तो इनमें से सबसे छोटा फोकल लेंथ कौन सा? ये दोनों. हो गया. So I have to choose L1 and L2. Clear? Out of this L1 and L2, ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ छोटा होना चाहिए. That means will be objective and this L2 will be eyepiece. eyepiece का फोकल लेंथ बड़ा होना चाहिए. तो मुझे पता चल गया कौन सा ऑब्जेक्टिव लेंस बनेगा. As well as once check out this criteria also. इसी से तो चूज हो गया. तो ये एपर्चर क्यों दिया है? तुम्हें एक बार चेक करना है कि एपर्चर भी सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है. तो हो रहा है. Out of all the apertures, we have to choose those two which have the smallest aperture. 1 centimeter, 2 centimeter, 10 and 5. Out of these 2 are the smallest aperture, so I have to use these two because both the apertures should be small. ओके, एपर्चर छोटा होना चाहिए, तो मैं ये दो लेंस यूज करूंगा. इन दोनों में से जिसको मैंने ऑब्जेक्टिव बनाया, किसको ऑब्जेक्टिव बनाया? जिसका फोकल लेंथ छोटा है, उसका एपर्चर भी छोटा होना चाहिए. देखो, इससे छोटा है. और जिसको मैंने आईपीस बनाया, उसका इससे बड़ा है. सो एवरी कंडीशन सैटिस्फाइड. दैट मींस वी हैव टू यूज L1 एज ऑब्जेक्टिव एंड L2 एज आईपीस, क्योंकि इसका फोकल लेंथ बड़ा है, इसका फोकल लेंथ छोटा है. सो दिस इज अ कंसेप्चुअल प्रॉब्लम कम्स इन द एग्जामिनेशन. Okay, where we have to think about these two conditions. Okay, and one more thing I told you, when you're dealing with any numericals related to magnifying power, and if you're using direct formula of magnifying power, हाँ, तुम ये direct formula लगा रहे हो तो इसमें sign convention, we will use the sign convention. अगर तुम्हें linear magnification formula लगा है, we are using the sign convention. लेकिन अगर तुम्हें magnifying power का formula लगा रहे हो, which you're getting here, then there is no sign convention. Okay, no sign convention in numericals. Okay, this is the end of compound microscope class. Let me see, do we have anything else in the video or not, in the notes? Okay, there is something called as length of tube. I think you understand what is the length of tube here. What is length of tube? VO plus UE. ये VO plus UE. Okay, but ये UE FE हो जाता है in case of a normal vision. तो VO plus FE हो जाएगा length of tube. लेकिन इनके साथ डिस्टिंक्ट विजन, दिस इज VO, दिस इज UE, तो UE रहेगा. we need to calculate. Okay, that is the thing we are going to discuss here, but I have told you that this is the length of microscope. Okay, so that's all for this video class. This video becomes very lengthy. In the next video we'll go for astronomical telescope. इसी वीडियो में डालूंगा तो और बड़ा लंबी हो जाएगा बेटा. Okay, that's all class. Thank you very much.